what is the mistake that you guys make, और आपको ये नहीं करना है. See, girls आपको ये नहीं बताएंगी. I'm gonna be the bad one. I'm telling you, मैं ही बुरी बनती हूँ क्योंकि मैं आपको बताती हूँ चीजें girls के point of view. Hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here. I was just getting ready to go out for coffee with my girlfriends and it just struck me that, hey, wait, I should do this video with you guys because मुझे बहुत सारे इसके comments आए हैं that how to differentiate or how to make out the difference between why the girl is playing hard to get or is she really not interested. So, ये जो वीडियो है ना, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है और आपको ये एंड तक सुनना है टू अंडरस्टैंड. ओके, सो नंबर 1, हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो है यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वुमेन प्ले हार्ड टू गेट. ओके, so firstly they play hard to get because they have been dumped by a guy. All right, so you know they're trying to get over their ex, they're trying to get over that experience of a bad relationship, and before getting into another one, you know, they just want to just hold themselves back, थोड़ा सा wait करना चाहती हैं, थोड़ा सा they want to see and test the waters where they are exactly. So that's one of the reasons. Okay, number 2, the second reason is well, I honestly find it like a bunch of BS, complete bullshit. Okay, but a lot of girls, they do it, and I thought ये आपको बताना ज़रूरी है as men out there to understand women little bit, if not too much. They play hard to get because they want to put you through a couple of dating tests. Now I'm gonna laugh it out loud saying, what are these dating tests? But let me tell you, yes, there are a couple of dating tests that women put you through. That is why they play hard to get. It could be just simple things कि उनको कहीं से पिकअप ड्रॉप करना है, या फिर out of the blue वो कहेंगी कि मुझे यहाँ मिलना है, or you know, they would just I mean, they're just like a lot of dating test होते हैं, और इसका वीडियो मैं एक अलग से करूँगी. I don't want to give too much time to this right now. But another reason why they play hard to get is because they are still testing you and putting you through dating test. मतलब स्कूल और कॉलेज में एग्जाम नहीं हमने कम दिए थे जो ये भी आपको करना पड़ता है. So I completely understand from a boy or a man's point of view. Another reason why they play hard to get is because, you know, somewhere the girls also feel that अगर उन्होंने बहुत जल्दी आपको हाँ बोल दिया और उन्होंने बहुत जल्दी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि you know, let's get into a relationship, या जो हमारा डेटिंग सीन है उसको थोड़ा सा और रेगुलर कर लेते हैं, let's just see कि हमारी रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, all of these things, then they feel कि ये बहुत easily available हैं. So from a girl's point of view, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर मैंने इतनी जल्दी हाँ बोल दिया तो फिर बॉयज़ क्या सोचेंगे कि मैं तो बहुत easily available हूँ, which I am not, because what girls feel that if they say yes, boys are going to go back and then start discussing it with their guy friends that, hey, you know what, this girl is easily available, and girls don't like that. So ये वाला जो particular point है, ये तो मैं कहूँगी कि more than 90% of the girls, they really think like this, that they don't want to portray that they're easily available. उन्हें ये दिखाना कि मैं बहुत easily available हूँ, I'm there for you, नहीं, वो ये नहीं करना चाहती हैं. Okay? Now this was part 1 where why they play hard to get. Okay, but in सब में please remember, ऐसा नहीं है कि she's not interested in you, she is interested in you, but she's playing hard to get. अब हमारा second part आता है where mostly men get confused. वो ये सोचते रह जाते हैं कि she likes me, तो वो she's playing hard to get, या फिर वो completely disinterested है. देखिए, ये कुछ साइंस हैं जो आपको देखने हैं कि जब गर्ल completely disinterested है. वो साइंस ऐसे होते हैं कि वो फ्लेकी है. फ्लेकी मतलब वो कभी कुछ और बोल देंगी, कभी कुछ और बोल देंगी, कभी कुछ प्लान बन जाएगा, कभी वो मना कर देंगी. उनके मैसेजेस जो होंगे वो बहुत वन वर्ड टाइप होंगे. ओके, हाँ, डन, ऑल राइट. फिर अगर आपने मैसेज किया है तो वो आपके मैसेज को मे बी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, मे बी शी जस्ट मैसेजेस यू इन द इवनिंग. अगर आपने सुबह का मैसेज किया है वो आपको शाम को मैसेज करेंगे. यू नो, दैट जस्ट गोज टू शो कि
उन्होंने वो मैसेज पढ़ लिया है. We all can make out now when you text message also or you're on WhatsApp, you can make out वो कब deliver हुआ है, कब read हो गया है. She can be online but she might not reply to your message, okay, because she thinks it's not important. तो ये सारे signs हैं कि वो disinterested हैं, वो आप में interested नहीं हैं. Don't waste your time, please. Okay. Another sign is that you will initiate conversations, talks, calls, messages. वो कभी नहीं करेंगी. Alright, and then अगर आपने कोई डेट का प्लान बनाया है, or let's say you've just made a plan for a movie or a lunch or a coffee or something, and she will always come up with an excuse. It could be work, it could be studies, it could be home, it could be family, it could be anything, friends, whatever. Alright, so these are signs where she's not interested. Please don't waste time. When girls are playing hard to get, वो ये नहीं करेंगी. Alright, when they are playing hard to get, वो तब भी आपको मैसेज करेंगी. Alright, they will reply to your calls. They are ready to meet you. These are all things that they are willing to do. वो करने को तैयार हैं. It's just that क्या वो एक relationship में बहुत जल्दी are they going to get into it and say yes, okay, let's just start because you and I we click? नहीं, वो नहीं करती. So please be very clear. जो girls disinterested होती हैं वो उनका response rate is going to be very very low. तो इसको आपको दिमाग में ज़रूर से रखना है. Alright? So I hope आपको थोड़ा सा ये difference समझ में आ गया होगा. Now we move on to part 3. हमने part 1 में cover किया है कि why do they play hard to get. Part 2 is वो disinterested हैं आप में, उसके signs मैंने आपके साथ discuss किए हैं. And part 3 is what is the mistake that you guys make. और आपको ये नहीं करना है. See, girls आपको ये नहीं बताएंगी. I'm gonna be the bad one. I'm telling you, मैं ही बुरी बनती हूँ क्योंकि मैं आपको बताती हूँ चीज़ें गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, नाउ अब आपको ये देखना है, अगर कोई गर्ल शी इज प्लेइंग हार्ड टू गेट और शी इज डिसइंटरेस्टेड, आप तब भी ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं एक मैसेज कर देता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई इट, लेट मी जस्ट आस्क हर व्हाई इज इट शी नॉट मैसेजिंग मी बैक और कॉलिंग, या फिर आप हर बारी वो कुछ कहती हैं कि पिक मी अप फ्रॉम हियर और हे यू नो व्हाट, let's not meet now, we'll see, I'll think about it. आप हर चीज़ में अगर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, and if she says कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, she's trying to somewhere use you because she knows that you're willing to spend money. तो अगर उनको पता चलता है कि आप उनके लिए छोटी से छोटी चीज़ कर सकते हैं, you're willing to spend money also, उन पे आप खर्च भी कर सकते हैं, ऐसी गर्ल्स गोल्ड डिगर्स होती हैं. ओके, तो पहले तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है that you stay away from such girls, and secondly, please do not act so desperate. No, absolutely no. कोई गर्ल ये आपको नहीं बताएगी. मैं आपको ये बोल रही हूँ इसलिए because I completely support men when it comes to understanding कि क्या आपको किसी गर्ल में टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करना है या नहीं, और इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. दूसरी जो आप गलती करते हैं वो ये है कि आप नीडी नहीं होते हैं बट आप कंप्लीटली इनडिफरेंट हो जाते हैं, आप बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं, यूर एब्सोल्युटली लाइक स्टोन कोल्ड. वो भी नहीं करना है, बिकॉज देर आर सम गर्ल्स हु आर जस्ट प्लेइंग हार्ड टू गेट बट मन ही मन में दे रियली लाइक यू. पर अगर आप बिल्कुल अपना चैप्टर बंद कर देंगे उनके साथ ये सोच के कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, अब आप कहेंगे कि नीति ये तो सब बहुत कंफ्यूजिंग है, हम नीडी और डेस्परेट भी नहीं एक्ट करें, एंड ऑन द अदर हैंड यूर टेलिंग अस कि हमें इनडिफरेंट और कोल्ड भी नहीं होना है. तो करना क्या है? देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अंडरस्टैंड, इफ यू आर सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज एंड इफ द गर्ल इज ऑल्सो टेक्सटिंग यू बैक इन अ नाइस वे, मे बी थोड़ा टाइम लेके, देन गिव हर सम टाइम. Okay, अगर आपने कोई प्लान बनाया, there's no harm taking initiative. Please let me tell you, there are a lot of good girls also out there. Like all you men and guys out there are so good, right? I know you guys are good. वैसे ही there are girls who are good also. Please don't let them go out of hand. All right? तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र कीजिए, फल मीठा होता है. और अगर आपने इनिशिएटिव लेके कोई प्लान बनाया है, in case she is not able to come, अगर वो हार्ड टू प्ले कर रही है, शी इज प्लेइंग हार्ड टू गेट, देन इन दैट केस वो हमेशा रिप्लाई करेंगी कि आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू कम राइट नाउ, बट कैन वी कीप इट फॉर अनदर सैटरडे, कैन वी कीप इट एट दिस डेट, एट दिस टाइम, आई एम फ्री. अगर वो डिसइंटरेस्टेड हैं
तो वो सिर्फ आपको एक मैसेज में ये कह देंगी कि नो आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू कम। उसके बाद वो कोई एफर्ट नहीं लगाएंगी इतना भी बोलने में कि क्या हम दूसरे दिन या किसी और दिन किसी और डे और टाइम पे मिल सकते हैं कि नहीं। सो प्लीज ये छोटे छोटे साइंस हैं जो यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑलराइट, योर टाइम, योर एनर्जी इज वेरी वेरी प्रेशियस, क्योंकि आपको अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि आप बहुत वैल्यूएबल हैं। यू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल। अगर आप वो अपने बारे में सोचेंगे तो ही सामने वाला वो आपके बारे में सोचेगा। तीसरी चीज जो आपने करनी है वो है सेट बाउंड्रीज। ओके, आपने मैसेज कर दिया, गेट बिजी इन वर्क और योर लाइफ, डोंट बॉदर, जब तक कि वो रिप्लाई नहीं करती है। इफ शी इज इंटरेस्टेड, शी इज प्लेइंग हार्ड टू गेट, वो तब भी रिप्लाई करेंगी। ओके, बार बार मैसेज मत कीजिए। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। अगर आपके प्लान्स हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उस समय आप उनसे बोल सकते हैं, यू पुट योर फुट डाउन दैट हे आई एम सॉरी बट आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सो मे बी वी कैन लुक एट अनदर डे। हम किसी और दिन और टाइम पे इसको देख सकते हैं। एंड देन उनका रिएक्शन देखिए। अगर वो इंटरेस्टेड हैं, शी विल डेफिनेटली फॉलो अप और वो प्लान फिर आपके साथ बनाएंगी। ओके, सो बाउंड्रीज अपनी सेट करना बहुत जरूरी है। राइट, आई होप you've got these points really clear. Needy act नहीं करना है, desperate act नहीं करना है. You don't have to even act absolutely stone cold indifferent. वो भी नहीं करना है. जरूरी है boundaries अपनी set करना. That is important. It's a game of wait and watch. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे टाइम आपको उन्हीं के बारे में सोचते रहना है. You have a life of your own. So please continue. And very important, you are precious. You are valuable. You are important. Get that in your head because you are as a man. Okay? ऐसे कुछ और बहुत सारे अगर आइडियाज आपके पास हैं, प्लीज लीव इट इन द कमेंट एंड दैट हेल्प्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू गाइज। गर्ल्स कैसे सोचती हैं एंड व्हाट डू दे वांट इन अ रिलेशनशिप, मैं वो सब कुछ आपके लिए लेके आऊंगी। एंड आई नो दैट समटाइम्स आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, बट हैंग ऑन, आपको धीरे धीरे जैसे आप मेरे साथ रहेंगे इस जर्नी में विद अ लॉट ऑफ अदर वीडियोज कमिंग अप, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गर्ल्स इन अ बेटर वे एंड I'm always there to support you. So thank you for watching. If you like this video, then please subscribe to my channel. Click on that bell so that every time there's a video uploaded, you will get the notification, and I'll see you soon. Bye-bye.